السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں انا یوسف۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی سٹی ہیڈ لائنز پر۔ 9 ارب کا میٹرو بس سگنل فری منصوبہ تیار۔ آزادی چوک، چونگی امر سدو اور کینٹی سٹاپ پر ایلیویٹڈ یو ٹرن اور فلائی اوور بنیں گے۔ ایل ڈی اے اراضی کو خلاف ضابطہ کمرشل قرار دے کر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے ضلع انتظامیہ کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ ادھر پولیس قومی رضاکاروں کے ٹی اے بیلز اور وردی الاؤنس میں 95 لاکھ روپے کی خورد برد کا الزام۔ پولیس نے انکوائری اینٹی کرپشن کو بھجوا دی۔ زیر حراست ملزم کی پولیس تشدد سے مبینہ ہلاکت۔ ایس ایس پی آپریشنز نے ایس ایچ او نواکوٹ کو معطل کر دیا۔ جاوید چیمہ سمیت 5 اہلکاروں کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج۔ ریلوے کے امتحان نے کتوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ سراغ رساں کتوں کے امتحان میں 8 امیدواروں میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں خوفناک اضافہ۔ مختلف اسپتالوں میں 37 نئے کیسز کی تصدیق۔ مجموعی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔ آج کلب روڈ پر سینٹرل ریسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس۔ صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی، سرکاری افسران اور میڈیا پرسنز کی شرکت۔ ادھر سی سی پی او کے ہدایت پر پولیس لائنز اور تھانوں میں مچھر مار سپرے۔ ہائی کورٹ نے این ٹی ایس کی آمدن اور آڈٹ کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ داخلوں میں این ٹی ایس کے کردار سے متعلق ملک بھر کی 140 یونیورسٹیز کو بھی جواب داخل کرنے کی ہدایت۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی زیر صدارت اجلاس۔ کمشنر راشد محمود لنگڑیال، ایس ایس پی آپریشنز، ڈی سی اوز، رکن اسمبلی بلال یاسین اور خواجہ عمران نذیر سمیت اعلی افسران کی شرکت۔ ڈی سی او کا شادمان اور ماڈل ٹاؤن کا دورہ۔ امام بارگاہوں اور ماتمی جلوسوں کے روٹس کا جائزہ لیا۔ رائے میں تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا تیسرا روز۔ ملک بھر سے آئے لاکھوں افراد کی اجتماع میں شرکت۔ مولانا زبیر الحسن آف انڈیا نے 39 جوڑوں کے اجتماعی نکاح کروائے۔ رائے تبلیغی اجتماع کے شرکاء کے انخلاء کا ٹریفک پلان تیار۔ اختتامی دعا کے بعد شرکاء کی گاڑیاں رائے سے ٹھوکر نیاز بیگ کی جانب سڑک کی دونوں اطراف استعمال کریں گے۔ 18 ایسوسیٹ 22 اسسٹنٹ پروفیسرز کے تقرر و تبادلے۔ ڈاکٹرز کے لیے نئی تعیناتی کی جگہ پر 6 ماہ تک خدمات سر انجام دینا لازمی قرار۔ شہر میں سبزی فروشوں کی منمانیاں۔ سرکاری نرخ ناموں کے بغیر زائد قیمتوں پر فروخت جاری۔ ادھر ایئرپورٹ پر مسافروں کو اشیاء کی مہنگے داموں فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ اور شکایات کے اندراج کے لیے رجسٹر غائب۔ ایل پی جی قیمت کو بھی پر لگ گئے۔ 5 روپے اضافے کے بعد 140 روپے فی کلو ہو گئی۔ شامی روڈ پر عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس۔ ممبران نے ڈرون حملوں پر اے پی سی بلانے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ عمران خان کہتے ہیں کہ ڈرون حملے رکنے تک نیٹو سپلائی بند کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی پی آئی سی آمد۔ ایکو کارڈیوگرافی ٹیسٹ کرایا، جبکہ اسپیشل سیکرٹری صحت بابر حیات تارڑ نے اینجیوگرافی کرائی۔ ڈاکٹرز کے مطابق دونوں کی رپورٹ نارمل ہے۔ ایم این اے پرویز ملک کی زیر صدارت شالامار ٹاؤن میں ڈینگی تدارک اجلاس۔ ادھر سنگھ پورہ میں رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک کی زیر صدارت ذیابیطس آگاہی واک کی گئی۔ رقم لے کر عمرے کا ویزا نہ دینے اور درخواست گزار کو پریشان کرنے پر صارف عدالت نے استوانہ حج اور عمرہ سروس پیکو روڈ کے مالک کو طلب کر دیا۔ ہائی کورٹ کا ماتحت عدالتوں کے جوڈیشل افسران کو آسان شرائط پر لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ۔ مسلم کمرشل بینک سے جلد معاہدے پر دستخط ہوں گے۔
معروف بزنس مین گوہر اعجاز کی جانب سے گورنر اور اہلیہ کے اعزاز میں عشائیہ، اب تمام ممبران سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ جعل سازی سے مبینہ زمین خورد برد کیس میں ملوث فلم سٹار میرا کی والدہ شفقت زہرا اینٹی کرپشن عدالت میں پیش، عدالت نے سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سیج پال گاؤں میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کے باعث ایلیٹ فورس کا کانسٹیبل گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ آئزیک کے زیر اہتمام 11ویں نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ کانفرنس کا تیسرا روز، مختلف سیمینارز میں طلباء کی شرکت۔ لمز میں ڈپارٹمنٹ آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے زیر اہتمام 3 روزہ اسلامک ایریا اسٹڈیز پروگرام پر بین الاقوامی کانفرنس شروع، ملکی اور غیر ملکی اسکالرز کی شرکت۔ سپریم کورٹ بار کے نومنتخب جنرل سیکرٹری آصف محمود چیمہ کی سابق عہدیداروں کے ہمراہ مسلم لیگ کاف کے صدر سینیٹر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ متحدہ آرائی موومنٹ لائرز ونگ کی طرف سے ورلڈ کپ جیت کرانے والی لائرز کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ۔ فیملی اور کرایہ داری کے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹانے کا فیصلہ، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت عالیہ میں ایک اور اسپیشل سنگل بینچ تشکیل دینے کی ہدایت۔ آواری ہوٹل میں 8ویں انٹرنیشنل سائیکیٹرک کانفرنس کا انعقاد، اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ بابر حیات تارڑ سمیت بیرون ملک سے آئے ہوئے مندوبین کی شرکت۔ انٹرنیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق کے زیر اہتمام سیمینار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کی خصوصی شرکت۔ گلبرگ میں فور برادرز کے ہیڈ آفس میں تقریب، سابق چیئرمین باپلا سید راغب علی نے دی انجینئرز پاکستان میں بطور ایگزیکٹو ممبر شمولیت اختیار کر لی۔ لاہور کالج آف آرٹس اینڈ سائنس کے طلباء کا 26 رکنی وفد اتحاد ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے چائنا سے لاہور پہنچ گیا۔ ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ ایشیا ٹیکسٹائل نمائش کا افتتاح کر دیا گیا، 100 سے زائد غیر ملکی ماہرین شریک۔ الحمرہ میں خیال کریٹو نیٹ ورک کے زیر اہتمام 2 روزہ آرٹ اینڈ لٹریچر فیسٹیول کا آغاز، آرٹ کے حوالے سے شارٹ کانفرنس میں بحث و مباحثے۔ ملک بھر سے مختلف اسکولوں کے طلباء و طالبات کا چڑیا گھر اور عجائب گھر کا دورہ۔ آل پاکستان انٹر ڈپارٹمنٹ ٹچ بال چیمپئن شپ کا آغاز، ابتدائی میچ میں پاکستان اسٹیل نے ریلوے کو 1 کے مقابلے میں 3 سکور سے ہرا دیا۔ فیصل ٹاؤن سینٹ اینتھنی اسکول میں سالانہ سپورٹس فیسٹیول، طلباء کے درمیان رسہ کشی اور چاٹی ریس کے مقابلے۔ این سی بی اے ویسٹ کینال کیمپس میں گالا نائٹ کا اہتمام، طلباء و طالبات ہلہ گلہ کر کے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ہیڈ لائنز آپ تو ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبروں کی تفصیل۔ ضلع انتظامیہ پر ایل ڈی اے کی حدود میں واقع اراضی کے خلاف ضابطہ کمرشل کر کے سرکاری خزانے کو 84 لاکھ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام، اینٹی کرپشن نے انکوائری شروع کر دی۔ اینٹی کرپشن لاہور ریجن میں چیف ٹاؤن پلانر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے متعلقہ افسران کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی گئی تھی۔ ایل ڈی اے حکام کے مطابق ضلع انتظامیہ نے ایل ڈی اے کی حدود میں واقع علامہ اقبال ٹاؤن اور سمن آباد ٹاؤن کی اراضی کی کمرشلائزیشن فیس وصول کر کے رقبے کو کمرشل کر دیا، جبکہ یہ ایل ڈی اے کا اختیار تھا۔ پولیس قومی رضاکاروں کے ٹی اے بلز اور وردی الاؤنس میں 95 لاکھ روپے کی خورد برد کا الزام، پولیس نے انکوائری اینٹی کرپشن لاہور ریجن کو بھجوا دی ہے۔ سی سی پی آفس اکاؤنٹ برانچ کے کلرک نیاز محمد ایوب اور سابق اکاؤنٹنٹ بلال کے خلاف ڈسٹرکٹ کمانڈر پولیس قومی رضاکار محمد اقبال کی درخواست پر تھانہ سول لائنز میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
पुलिस ने टीए बिल्स और वर्दी अलाउंस की मद में 95 लाख रुपए का गबन करने के इल्ज़ाम में सीसीपीओ ऑफिस के अकाउंट्स ब्रांच के क्लर्क्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करके सीसीपीओ ऑफिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और अब बात करेंगे शहर में जारी डेंगू वबा की। डेंगू का खतरा बदस्तूर कायम है। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू बुखार के 37 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। लाहौर में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 400 से तजावुज़ कर गई है। डेंगू के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान इत्तफाक अस्पताल में डेंगू बुखार के 22 नए केसेस सामने आए हैं। हुकूमत पंजाब लाहौर शहर समेत सूबे भर में डेंगू डे मना रही है। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डेंगू डे के मौके पर शहर भर में वॉक्स होंगी और रैलियां निकाली जाएंगी। आवाम की आगाही के लिए बैनर्स और प्ले कार्ड्स मुख्तलिफ मकामात पर आवेजा किए जाएंगे, जबकि सिविल सेक्रेटरीट समेत तमाम सरकारी दफातर खुले रहेंगे और सेक्रेटरीज ऑन ड्यूटी होंगे। सड़कों और अहम चौराहों पर डेंगू से बचाव के हवाले से पम्फलेट्स तकसीम किए जाएंगे और शहर भर में सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। उधर आर्ट क्लब रोड पर सेंट्रल रिस्पांस कमेटी बराए डेंगू का इजलास हुआ, जिसमें डेंगू डे के इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, सरकारी अफसरान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि डेंगू डे के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। समनाबाद टाउन में भी इंसदाद डेंगू के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि पंजाब से डेंगू के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। राना मशहूद का कहना था कि वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ रोजाना की बुनियाद पर डेंगू के खिलाफ इकदाम को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डेंगू के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि डेंगू के खात्मे के लिए शहरियों का ताउन जरूरी है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर असलम। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत शालामार टाउन में डेंगू तदारुक के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें अरकान सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज अहमद चौधरी, बाऊ अख्तर अली समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। परवेज़ मलिक ने कहा कि शहर में इतवार को एंटी डेंगू डे मना रहे हैं, जिसमें शहरियों को डेंगू के हवाले से आगाही देने के लिए न सिर्फ मुख्तलिफ मकामात पर वॉक्स की जाएंगी बल्कि पम्फलेट्स भी तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डेंगू का सबको मिलकर खात्मा करना है। बाद अज़ां उन्होंने लाइजियम स्कूल में तालिबात की जानिब से डेंगू स्टॉल का दौरा भी किया। रुकन कौमी असम्बली महर इश्तियाक अहमद की ज़ेर सदारत समनाबाद टाउन में डेंगू तदारुक के सिलसिले में इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन अब्दुल जब्बार शाहीन, टीएमओ समनाबाद इम्तियाज अहमान समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। महर इश्तियाक अहमद ने कहा कि डेंगू से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है और पंजाब हुकूमत डेंगू के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। शहर भर में डेंगू आगाही मुहिम के सिलसिले में वॉक्स और सेमिनार्स का एहतमाम किया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 3 की जानिब से गवर्नमेंट अफसर जहां वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर रुस्तम पार्क से गुलशन रावी रोड तक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत सेंटर की इंचार्ज बुशरा यास्मीन ने की। इस मौके पर चौधरी बशीर, मिसेस कौसर इस्लाम, इदारा खिदमत इंसानियत, अंजुमन ख़वातीन, समाजी बहबूद, जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन, डेफ वेलफेयर फाउंडेशन, सलामत वेलफेयर फाउंडेशन और तहरीक इस्लाम माशरे के नुमाइंदों समेत पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात और रज़ाकारों ने शिरकत की। LDA मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल जौहर टाउन में डेंगू पर काबू पाने के हवाले से सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रिंसिपल ज़िले हुमा, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग शकील मिनहास, डायरेक्टर एजुकेशन चौधरी इश्तियाक, मोहम्मद ताहिर, असिस्टेंट डायरेक्टर शफीक अयास और तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत की। क़रीरीन का कहना था कि माहौल को खुश्क और साफ सुथरा रखकर ही डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। मुगलपुरा के इलाके में वाक़ सिटी डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में मुनक़िद होने वाले डेंगू आगाही सेमिनार में MPA वहीद गुल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर हेड मिस्ट्रेस स्कूल रुबीना हफीज़, सोफिया नसरीन, शगुफ्ता बुशरा, तैयबा फातिमा, उज़मा शाकिर, फरीहा साबिर और नुसरत मिनहास और नुसरत महनाज भी मौजूद थीं। तलबा ने शहरियों की आगाही और डेंगू से बचाव के मौजू पर खाके पेश किए, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। अब टमा के सीनियर रहनुमा गौहर एजाज की जानिब से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसमें मुल्क भर से सनतकारों ने शिरकत की। मॉडल टाउन में गौहर एजाज की रिहाइश गाह पर मुनक़िदा इशाइये में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के अलावा उनकी अहलिया परवीन सरवर, MNA परवेज़ मलिक, सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी, मोहसिन शेखानी, शेख अकबर, चौधरी अरशद, डॉक्टर अवैस, डॉक्टर जावेद असगर, आरिफ जीवा, आदिल बशीर, राहील असनासर, बैरिस्टर अहमद परवेज़, राना जाहिद तौसीफ़, जावेद इकबाल और एहसन बशीर ने शिरकत की। सेंट एंथनी स्कूल के ज़ेरे एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स डे की रंगारंग तकारीब का इनेकाद किया गया। सीनियर सेक्शन के बच्चों ने रंगारंग और मुख्तलिफ खेल पेश किए। तज़ीन मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। सेंट एंथनी स्कूल फेस्टलटन ब्रांच ने सालाना स्पोर्ट्स मेला मनाया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मैक्सवेल शांति ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि वाइस प्रिंसिपल शुमाइला आशिर और स्पोर्ट्स इंचार्ज कमर जेम्स ने मुनसिफ के फ़राइज़ अंजाम दिए।
स्पोर्ट्स मेले के हवाले से वाइस प्रिंसिपल शुमाइला आशिर का कहना था कि जहां तालीमी सरगर्मियां बच्चों की ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी हैं, वहीं इनके जिस्मानी नशोनुमा और चुस्ती के लिए खेलों में शरीक होना भी नागुज़ीर है। जितना कि एकेडमिक्स बच्चों के लिए ज़रूरी है, उतनी ही फ़िज़िकल एजुकेशन भी ज़रूरी है। बच्चे इससे बहुत कुछ सीखते हैं, सेल्फ़ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है, सोशल वैल्यूज़ आती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ ही इवेंट्स हैं स्कूल की जिसमें पेरेंट्स को भी चांस मिलता है देखने का कि उनके बच्चे क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीले, नीले और लाल कपड़ों में मलबूस टीमें खेल पेश करते हुए निहायत दिलकश दिखाई दे रही थी, जबकि लड़कियों ने चार्टी रेस का शानदार मुजाहरा पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया पोजीशन लेने वाली टीमों को स्कूल इंतजामिया की जानिब से ट्रॉफी और कप्स दिए गए। कैमरामैन कामरान खान के साथ तज़ीन मलिक, सिटी 42। महकमा दाखिला पंजाब ने हालिया ड्रोन हमले के बाद लाहौर शहर समेत सूबे भर के तमाम इदारों की सिक्योरिटी को फौरी तौर पर रेड अलर्ट कर दिया। ये फैसला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुहेल आमिर मिर्जा की सरबराही में होने वाले एक इजलास में हुआ, जिसमें IG पुलिस खान बेग, होम सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान समेत खुफिया इदारों के अफसरान और आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास के बाद होम सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ के ड्रोन हमले के बाद लाहौर शहर समेत सूबे भर में दहशतगर्दी का खतरा है, जिसके लिए तमाम इदारों को रेड अलर्ट कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर एक्साइज और ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा है कि मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतजामात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जबकि यकम मुहर्रम से पाक फ़ौज और रेंजर्स भी तलब कर ली गई हैं। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग में मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन, कमिश्नर DIG राना अब्दुल जब्बार, ख्वाजा इमरान नज़ीर, माजिद ज़हूर, DCO DPO शेखुपुरा, DPO कसूर, ननकाना और स्पेशल ब्रांच के अफसरान ने शिरकत की। DCO ने शादमान और मॉडल टाउन में इमाम बारगाहों और मातमी जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। उन्होंने टाउन्स की इंतजामिया को जुलूसों के रास्तों पर डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे की हिदायत कर दी है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। DCO डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कसर बतूल, शादमान और मॉडल टाउन A ब्लॉक में वाक़ इमाम बारगाहों का दौरा किया। इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुलाकात करके मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लिया। DCO ने मातमी जुलूसों के रूट्स का मुआयना भी किया। इस मौके पर ACCT अब्दुल्ला नैयर, PS2 DCO तारिक जमान, TMO दाता टाउन मीर अकमल, पुलिस अफसरान, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, वासा और सुई गैस के मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। DCO ने मुहर्रमुल हराम में अमन और अमान के इंतजामात बेहतर बनाने के लिए मॉडल टाउन में 75, ठोकर न्याज बेग पर 35, अंदरून शहर में 85 और इस्लामपुरा में 48 CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत कर दी। टाउन हॉल में इंसदाद डेंगू के हवाले से होने वाले इजलास की सदारत करते हुए DCO डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने तमाम टाउन्स को हिदायत की है कि मुहर्रमुल हराम में बरामद होने वाले जुलूसों के रास्तों पर डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे करवाया जाए, ताकि अज़ादार डेंगू वायरस में मुब्तला ना हो। उन्होंने कहा कि जुलूस के रास्तों के गिर्द जमा होने वाले पानी का खात्मा यकीनी बनाया जाए। SSP ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार का कहना है कि मीरान शाह ड्रोन हमले के बाद मुहर्रम में दहशतगर्दी के खतरात मजीद बढ़ गए हैं। सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मजालिस और जुलूसों की मुंतजमीन पुलिस से ताउन करें। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में मजालिस और जुलूसों की मुंतजमीन से SSP ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार ने मीटिंग की। मीटिंग में अलहाज हैदर अली मिर्जा, खुरम नकवी, ख्वाजा बशारत करबलाई, असद नकवी, अकील शाह, अली रजा शाह, तकी खान, अजमल नकवी, मुकरम शाह समेत 200 से ज़ायद मुंतजमीन, डिविजनल SPs और SP हेडक्वार्टर मारूफ सफ्दर वाहला भी शरीक थे। और कुछ जो फॉरनर्स यहाँ पे रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ाया है। कुछ कॉन्सुलेट्स की सिक्योरिटी जो है, कॉन्सुलेट्स की सिक्योरिटी को हमने आज रिविजिट किया और उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई है। नवाकोट पुलिस ने मुबैना तौर पर तशद्दुद से 25 साल रिक्शा ड्राइवर को हलाक करने के बाद लाश दरियाए रावी में फेंक दी। SP इकबाल टाउन समेत दीगर अहलकार वाक़े को 10 रोज़ तक छुपाते रहे। नवाकोट पुलिस ने ईद से एक दिन कबल फेरोज़वाला के रिहायशी रिक्शा ड्राइवर रिजवान को डकैती की वारदातों के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया। गुज़श्ता माह की 19 और 20 तारीख की दरमियानी शब रिजवान पुलिस के मुबैना तशद्दुद से हलाक हो गया। प्राइवेट क्लिनिक से मौत की तस्दीक के बाद मुबैना तौर पर SHO नवाकोट जावेद इकबाल चीमा, सब इंस्पेक्टर आमिर चीमा और 3 कांस्टेबल्स ने मिलकर उसकी लाश दरियाए रावी में फेंक दी। रायविन में आलमी तबलीगी इज्तिमा के तीसरे रोज़ मौलाना ज़ुबैरुल हसन ऑफ इंडिया ने 39 जोड़ों के इज्तिमाई निकाह करवाए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नमाज असर रायविन में अदा की। आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले के तीसरे रोज़ मौलाना ज़ुबैरुल हसन ने बादस नमाज असर ख़िताब करते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अज़दवाजी ज़िंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारना चाहिए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी का कहना है कि इतवार को तबलीगी इज्तिमा की इख्तितामी दुआ की वजह से ठोकर से रायविन रोड बंद रहेगी, जबकि गाड़ियों के इनखला के वक्त रायविन रोड पर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं होगी।
चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी के मुताबिक रायगढ़ में सालाना तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले के इख्तिताम पर दुआ के बाद इज्तिमा के शुरका की गाड़ियों के इनखला के लिए ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है। 3 नवंबर को इख्तितामी दुआ के बाद ट्रैफिक प्लान के मुताबिक ठोकर न्याज बेग से रायगढ़ की जानिब सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे के सुराग रसा कुत्तों का दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से धमाका खेज मवाद सूंघने का इम्तहान हुआ। इम्तहान में तमाम कुत्ते धमाका खेज मवाद की मौजूदगी का पता चलाने में नाकाम हो गए। मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र पाकिस्तान रेलवे ने मुल्क के 13 रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजाम मौसर बनाने के लिए सुराग रसा कुत्तों की खिदमत हासिल करने का मनसूबा तैयार किया। इस मनसूबे के लिए रेलवे अकेडमी में सुराग रसा कुत्तों का इम्तहान लिया गया। रेलवे अकेडमी में कुत्तों से सामान की तलाशी और धमाका खेज मवाद की मौजूदगी का पता चलाने का मुख्तलिफ मराहिल पर मबनी टेस्ट लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी तहरीरी हुक्म जारी करते हुए NTS की आमदन और ऑडिट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने दाखिलों में NTS के किरदार से मुतालिक यूनिवर्सिटीज़ को भी जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने तहरीरी फैसले में हायर एजुकेशन कमीशन को पाबंद किया है कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में दाखिले और कौमी और बैनुल अक़वामी स्कॉलरशिप के लिए नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए होने वाले टेस्ट से मुतल्लिका पॉलिसी से अदालत को आगाह किया जाए। सारिफ अदालत ने रकम लेने के बावजूद उम्रे का वीज़ा ना लगवा कर देने और दरख्वास्त गुजार को परेशान करने पर उस्तवाना हज और उम्रा सर्विस पीको रोड के मालिक को 9 दिसंबर को तलब कर लिया। सारिफ अदालत में बिलालगंज के राजा मुमताज़ अहमद ने उस्तवाना हज और उम्रा सर्विस पीको रोड के खिलाफ 5 लाख रुपए हरजाना और वीज़े की कीमत वापस दिलवाने के लिए दावा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमंतखब सेक्रेटरी जनरल आसिफ महमूद चीमा ने साबिक ओहदेदारों और सदर मुस्लिम लीग लॉयर्स विंग के हमरा मुस्लिम लीग काफ के सदर सेनेटर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने नौमंतखब जनरल सेक्रेटरी को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमंतखब सदर कामरान मुर्तज़ा को भी फ़ोन करके मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वकला तहरीक पाकिस्तान का हरावल दस्ता थे और क़याम पाकिस्तान के बाद भी उनका किरदार तारीख का रोशन बाब है। लाहौर एयरपोर्ट पर जनरल स्टोर के सेल्समैन अशिया की महंगे दामों फरोख्त से बाज नहीं आए। वार्निंग मिलने के बावजूद चीज़ें 100% महंगी, जबकि रेट लिस्ट और शिकायत रजिस्टर भी काउंटर से गायब कर दिए। सिटी 42 से अपने गुफ्तगू में मुसाफिरों ने बताया कि उन्हें चीज़ें महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, जबकि मुतालबा करने पर रेट लिस्ट और शिकायत का रजिस्टर भी नहीं दिखाया जा रहा। मुसाफिरों ने मजीद बताया कि एयरपोर्ट पर इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं, अपनी शिकायत लेकर किसके पास जाएं। रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक के ज़ेर सदारत ज़्यादती से आगाही के सिलसिले में सिंहपुरा में वॉक की गई। ज़्यादती से आगाही के सिलसिले में सिंहपुरा में डॉक्टर फौजिया मोहिन की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक ने की, जबकि वॉक में रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक, रुकन सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के तलबा का 26 रुकनी वफ़द इत्तेहाद एयरलाइन की परवाज़ के जरिए चाइना से लाहौर पहुँच गया। तलबा का 26 रुकनी वफ़द इत्तेहाद एयरलाइन की परवाज़ 241 के ज़रिए अबू ज़हबी से लाहौर पहुँचा। वफ़द की तर्जुमान मिसेज़ अंजुम ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर में प्राइवेट कॉलेजेस में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का अपनी नौइयत में चाइना का पहला दौरा था, जहाँ उन्होंने अपने कॉलेज के तलबा को चीन के तालीमी निज़ाम से रूशनास कराया। ख्याल क्रिएटिव नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा आर्ट्स एंड लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो गया। इफ्तिताही सेशन में मारूफ आर्टिस्ट मदीहा गौहर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं अकमल सुमरो की रिपोर्ट। माल रोड पर वाक़ई अलमरा हॉल में मुनक़िद होने वाले इस आर्ट्स एंड लिटरेचर फेस्टिवल में लाकास और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। इफ्तिताही सेशन में मारूफ आर्टिस्ट मदिया गौहर और कद्दूस मिर्जा ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर कद्दूस मिर्जा का कहना था कि लाहौर में आर्ट को जिंदा रखने के लिए ये खूबसूरत काविश है। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आर्टिस्ट आपस में मिलेंगे, आर्टिस्ट को एक दूसरे के करीब लाएगा और फिर आर्टिस्ट को अवाम के सामने, पब्लिक के साथ भी कुर्बत होगी। फेस्टिवल के शुरका का कहना है कि मुआशरे में अमन पसंद सोच को उजागर करने के लिए आर्ट की तालीम को फ़रोग देना होगा। बहुत अच्छा इवेंट लग रहा है और बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि हमारे लाहौर की सेलिब्रेशन हो रही है। एक चांस मिल रहा है इन सब जो प्रेजेंट आर्टिस्ट हैं उनकी स्पीचेस सुनना, और वो उनको इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। काफ़ी ज़्यादा रौनक रंगीनियाँ पिछले साल के मुकाबले में है।
आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल के मौके पर मुल्की सकाफत को फरोग देने के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहां सस्ते दामों अशिया फरोख्त की जा रही हैं। फेस्टिवल कल शाम तक जारी रहेगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अकमल सोमरो, सिटी। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन और स्पेशल सेक्रेटरी सैयद बाबर हयात तारड़ ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से अपने मामूल के टेस्ट करवाए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन ने इकोकार्डियोग्राफिक टेस्ट करवाया। डॉक्टर्स का कहना है कि सैयद मुनव्वर हसन के टेस्ट नॉर्मल हैं। दूसरी जानिब स्पेशल सेक्रेटरी सैयद बाबर हयात तारड़ ने भी PIC से एंजियोग्राफी कराई। बाबर हयात तारड़ ने दोपहर के वक्त अपनी CT एंजियोग्राफी करवाई। डॉक्टर्स का कहना है कि एंजियोग्राफिक टेस्ट नॉर्मल है। महकमा सेहत ने मुख्तलिफ शोबों के 18 एसोसिएट और 22 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। साहिवाल, गुजरांवाला, सियालकोट मेडिकल कॉलेज में तैनात होने वाले डॉक्टर्स के लिए 6 माह खिदमत सर अंजाम देना लाजमी होगा। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन एसोसिएट प्रोफेसर्स के तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं, उनमें सियालकोट मेडिकल कॉलेज और CMS के शोबा सर्जरी के डॉक्टर फारूक अफजल और डॉक्टर वसीम हयात खान का बाहमी तबादला किया गया है। डेंगू लार्वा बरामद होने पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड के प्रिंसिपल आरिफ अलवी नदीम समेत दीगर 5 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौलखा पुलिस के मुताबिक महकमा माहौलियात के डेप्यूटी सेक्रेटरी यूनुस जाहिद ने टीम के हमरा गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज रेलवे रोड पर छापा मारा, जहां से डेंगू लार्वा बरामद होने पर कॉलेज के प्रिंसिपल आरिफ अली नदीम और दीगर 5 अफसरान अकील अहमद, सैयद ताहिर, अरशद शाहीन, रमजान तबस्सुम और माजिद करीम के खिलाफ डेंगू एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी, जिस पर नौलखा पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर मियां अबू सरशाद का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पैसों में कमी और ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का संजीदगी से जायजा ले। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर मियां अबू सरशाद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मुल्क की सनत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, जिससे पैदावारी लागत कम होने से मुल्की मसनूआत आलमी मंडियों में मुसाबकती दौड़ में शामिल हो सकेंगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने ड्रोन हमलों पर APC बुलाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान का कहना है कि हुकूमत जाती है तो जाए, नेटो सप्लाई रोक कर दिखाएंगे। तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से चौधरी निसार को क्रेडिट देता हूँ। इजलास में कोर कमेटी के मेंबरान जहांगीर तरीन, जावेद हाशमी, परवेज़ खटक, असद कैसर, असद उमर, आरिफ अलवी, शीरी मजारी, मुनज़्ज़ा हसन, मियाँ महमूद रशीद, आरिफ अलवी, नादिर लगारी, शफकत महमूद, नईमुल हक और अब्दुल अलीम खान समेत दीगर ने शिरकत की। मेट्रो बस के रूट को सिग्नल फ्री बनाने के लिए LDA और टीपा ने मंसूबा तैयार कर लिया। आज़ादी चौक, चुंगी अमर सद्दू और कैंची स्टॉप पर एलिवेटेड U-टर्न और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। LDA और टीपा ने मेट्रो बस के रूट को सिग्नल फ्री बनाने के लिए मंसूबा तजवीज़ किया है, जिसके मुताबिक मेट्रो बस को रवाना रखने के लिए आज़ादी चौक, चुंगी अमर सिद्धू और कैंची स्टॉप पर एलिवेटेड U-टर्न और फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक अमाहा मेट्रो बस स्टेशन से 450 मीटर की दूरी पर 2 एलिवेटेड U-टर्न बनाए जाएंगे। लम्स में डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा इस्लामिक एरिया स्टडीज़ प्रोग्राम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स ने शिरकत की। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज और जापान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटीज़ के ताउन से इस्लामिक एरिया स्टडीज़ प्रोग्राम पर मुनाकिद होने वाली 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ मारूफ स्कॉलर लोकास वर्थ, एलिज़ाबेथ लोब, उमर फारूक समेत जर्मनी, मलेशिया और जापान के स्कॉलर्स ने भी शिरकत की। लेबॉर्ड सेंटर में खुसूसी अफराद के लिए आर्किड और ग्राफिक डिज़ाइनिंग समेत दीगर कोर्सेज की क्लासेस का इजरा कर दिया गया। MNA परवेज़ मलिक और लाहौर चैम्बर के सदर सुहेल लाशारी ने नए क्लासरूम्स और प्रोफेशनल किचन का इफ्तिताह किया। शादमान विवाह के लेबॉर्ड सेंटर में 7 लाख रुपए की लागत से तैयार करदा प्रोफेशनल किचन समेत क्लासरूम्स की इफ्तिताही तकरीब में अहमद परवेज़ मलिक, नगमाना जावेद, फारूक नसीम, सईद खान, खालिद शफीक और अब्बास खान समेत दीगर शरीक हुए। चेयरमैन वामटा सैयद राग़िब अली शाह ने एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर दी इंजीनियर्स पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। गुलबर्ग में लाहौर सेंटर में 4 ब्रदर्स के हेड ऑफिस में होने वाली तकरीब में सदर दी इंजीनियर्स पाकिस्तान इंजीनियर जावेद असलम, इंजीनियर मलिक सलीम, इंजीनियर आमिर ज़मीर, इंजीनियर हफीज़ुल्लाह नियाज़ और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया प्रोफेसर सुहेल कुरैशी समेत एग्जीक्यूटिव कोर कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इंटरनेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद हुआ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद ने खुसूसी शिरकत की।
پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان پر سیمینار میں انسانی حقوق کے اداروں کے سربراہان اور نمائندگان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ سب مل بیٹھ کر سوچیں کہ ہم انسانی حقوق کے ایشو پر کہاں کھڑے ہیں۔ پاکستان بھر سے 10 سے زائد سکولز کے طالب علموں نے چڑیا گھر کا دورہ کیا۔ رائزنگ پبلک سکول مناہلا، کینیڈ سکول سسٹم مرید کے، غزالی ٹرسٹ سکول سیالکوٹ، یوسف گرامر سکول ڈسکا، غازی ٹرسٹ سکول سیالکوٹ، عمر پبلک سکول آزاد کشمیر، الائٹ سکول قصور، میاں محمد پبلک سکول گجرات اور نیشنل ایم سکول لاہور کے طالب علموں نے چڑیا گھر کی سیر کی۔ اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد ہفتے کے آخری روز لاہور میوزیم پہنچ گئی۔ میوزیم انتظامیہ رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام میں ڈینگی کے بارے میں آگاہی دیتی رہی۔ مزید بتا رہے ہیں ریحان گل اس رپورٹ میں۔ لاہور میوزیم میں ہفتے کے آخری روز فیملیز اور اسکول و کالج کے طلباء طالبات کی بڑی تعداد تفریح اور مطالعاتی دورے پر پہنچ گئی۔ میوزیم کے مین گیٹ سے داخلی راستے تک لوگ لائنوں میں لگ کر میوزیم میں داخل ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ مطالعاتی دورے پہ آئے طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ انہیں لاہور میوزیم کے دورے سے اہم اور تاریخی چیزوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر کے ایک ہسٹوریکل پلیس بنایا گیا ہے اور یہ بچوں کے لیے تو بہت اچھی جگہ ہے اور یہاں پر زیادہ تر ٹرپس آنے چاہیے کیونکہ زیادہ تر جو اسٹڈیز ہیں وہ اسی کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ بڑی زیادہ نالج ہماری بڑی ہے، پاکستان کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا ہے، بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا ہے۔ وزٹ کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے، پاکستان کی کافی ہسٹری پتہ چلی ہے اور قائد کے اور علامہ اقبال کے کافی سارے ہم نے پورٹریٹس دیکھے ہیں۔ لاہور میوزیم کی انتظامیہ نے لوگوں کے رش کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈینگی کے حوالے سے آگاہی مہم بھی جاری رکھی۔ لوگوں میں آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے گئے۔ لاہور میوزیم کے پبلک ریلیشن آفیسر نومیہ خادم کا کہنا ہے کہ لوگوں کے رش کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی طور پر ڈینگی آگاہی کا انتظام کیا گیا تھا۔ میوزیم نے ایک پراپر ایک لیکچر کا اہتمام کیا ہے عوام الناس کے لیے، اساتذہ کے لیے اور اسپیشلی جو گھریلو خواتین اور جو جتنی فیملیز آ رہی ہیں ان کے لیے ہم نے اہتمام کیا ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکے۔ لاہور میوزیم انتظامیہ کی جانب سے تفریح کے لیے آنے والے لوگوں میں انسداد ڈینگی سے متعلق آگاہی اچھا قدم ہے۔ اس طرح ڈینگی کی روک تھام کے سلسلے میں پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین علی شیر کے ساتھ ریحان گل، سٹی 42۔ ایچیسونین کرکٹ پریمیئر لیگ کے افتتاحی میچ میں رائل ٹائگرز نے ایچ وائی رائلز کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ خیابان کرکٹ گراؤنڈ میں ایچیسن کالج سے فارغ التحصیل طلباء پر مشتمل 4 کرکٹ ٹیموں کے مابین لیگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی میچ میں ایچ وائی رائلز نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز بنائے۔ فرید آغا 38، حیدر بخاری 26 اور محمد احمد 20 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ عمر برکی نے 3 اور احسان زکا نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ متحدہ آرائی موومنٹ لائرز ونگ کے سیکرٹری میاں محمد طالب اور میاں محمد مجاہد کی طرف سے بھارتی کرکٹ ٹیم کو شکست دے کر آنے والے لائرز کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ مقامی ہوٹل میں بھارت کی سرزمین پر ان کی کرکٹ ٹیم کو شکست دے کر آنے والی لائرز کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں میاں طالب کی طرف سے استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں کرکٹ ٹیم کے کپتان سردار احمد جمال سکیرا، ایڈوکیٹ میاں ظفر علی ضیاء خان، میاں ارشد رفیق انیس، عبد المجید اور باسط زمان ایڈوکیٹ کے علاوہ آغا اسامہ ایڈوکیٹ، عمران اے میاں ایڈوکیٹ، عرفان اسلم، رانا ایڈوکیٹ، رانا ضمیر احمد ایڈوکیٹ اور غلام عباس ایڈوکیٹ سمیت وکلاء کی بھاری تعداد نے شرکت کی۔ آل پاکستان انٹر ڈپارٹمنٹ ٹچ بال چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب رائے الطاف حسین نے افتتاح کیا۔ پنجاب اسٹیڈیم میں منعقد کی جانے والی چیمپئن شپ میں پاکستان اسٹیل، ریلوے اور پولیس کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ابتدائی میچ میں پاکستان اسٹیل اور ریلوے کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا، جس میں پاکستان اسٹیل نے 1 کے مقابلے میں 3 سکور سے کامیابی حاصل کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے کہا ہے کہ امریکہ نے امن مذاکرات پر ڈرون حملہ کیا ہے، ہم مذاکرات کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ پی سی ہوٹل میں انسانی حقوق کے حوالے سے منعقدہ سیمینار کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ ڈرون حملوں کے حوالے سے امریکہ کا اپنا موقف ہے اور پاکستان کا اپنا۔ ڈرون حملہ امن مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر نے کہا ہے کہ حلقہ پی پی 137 میں محرم الحرام کے حوالے سے بہترین انتظامات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ایم پی خواجہ عمران نذیر نے شاہدرہ میں حلقہ پی پی 137 میں محرم الحرام کے انتظامات کے سلسلے میں میٹنگ کی، جس میں حاجی بشارت، عمر بشارت، شاہد محمود چندہ، سید حشمت، بھولا ڈوگر، ڈی ایس پی آغا ناصر، ایس ایچ او شاہدرہ شاہد گجر،
चौधरी अशरफ, हामिद ताज, आबिद मुगल, शाहिद बट, तारिक नियाजी, मलिक सफदर हुसैन, सैयद जावेद समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। राना ग्रामर स्कूल के ज़ेरे एहतमाम कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ और रंगारंग प्रोग्राम्स पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। गुलशन रावी में वाक़ राना ग्रामर स्कूल बॉयज़ कैंपस में सालाना कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल राना मोहम्मद आसफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौका पर राना मोहम्मद काशिफ और निदा नईम समेत असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। आइज़क के ज़रिए एहतमाम होने वाली 4 रोज़ा 11वीं नेशनल यूथ डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनक़िद हुए। तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। शालीमार टावर में मुनक़िद होने वाली 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तीसरे रोज़ पहले फ्लोर पर इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से खुसूसी लेक्चर दिया गया, जिसके बाद एनर्जाइज शो का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने भरपूर हिस्सा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैमिली और किराएदारी के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाने का फैसला कर लिया। सूबे भर की ज़िलाई अदालतों के फैसलों के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में हज़ारों अपीलें दायर हैं, लेकिन जजेस की कमी की वजह से इन अपीलों की समाअत के लिए सिर्फ एक बेंच कायम है। इस वक्त जस्टिस फ़ारूक इरफान खान पर मुश्तमिल स्पेशल सिंगल बेंच केसेस की समाअत कर रहा है। स्पेशल जज एंटी करप्शन की अदालत में जालसाजी से मुबैना ज़मीन खुर्द-बुर्द केस में मुलव्विस फिल्म स्टार मीरा की वालिदा शफकत ज़हरा पेश हो गईं। अदालत ने समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। स्पेशल जज एंटी करप्शन की अदालत में एंटी करप्शन ने फिल्म स्टार मीरा की वालिदा शफकत ज़हरा और दीगर 3 अफराद के खिलाफ जालसाजी से अजमत अली की ज़मीन अपने नाम कराने के इल्ज़ाम में चालान अदालत में पेश। सहाफ़ी और कॉलम निगार रऊफ़ ताहिर की अहलिया की नमाज जनाजा वापडा टाउन में अदा की गई। वापडा टाउन J2 ब्लॉक की जामिया मस्जिद में रऊफ़ ताहिर की अहलिया की नमाज जनाजा कारी मोहम्मद नसीम ने पढ़ाई। नज़म वली खान, नवीद चौधरी, मुजीबुर रहमान शामी, सलमान गनी, जुनैद सलीम, ताहिर मलिक, सज्जाद मीर, औरिया मकबूल जान, प्रोफेसर मुगीसुद्दीन शेख, जमात इस्लामी के रहनुमा अमीरुल अज़ीम, लियाकत बलोच, फरीद पराशा, प्रोफेसर हमायूं सलीम, डॉक्टर मजहर सलीम, अशरफ अजीम, सलमान आबिद, अख्तर अब्बास, असलम ज़ुबैर, करामत भट्टी, सहाफ़ियों, सियासी और समाजी रहनुमाओं और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। अंसारी ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव जावेद अंसारी की हमशीरा अब्दुल बासित से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। अल-फज़ल बैंक्वेट हॉल गुलशन रावी में मुनक़िदा शादी की तकरीब में जस्टिस रिटायर्ड मुस्तंसर हसन, जस्टिस रिटायर्ड मलिक अख्तर हसन, ब्रिगेडियर मंजूर हसन और सदर हॉलडोड शब्बीर लम्हा समेत अजीज़ व अकारिब की कसीर तादाद ने शिरकत की। दुल्हा दुल्हन का निकाह जामिया मस्जिद हनफिया के इमाम ने पढ़ाया, जबकि मेहमानों ने नौब्याहता जोड़े को तहाइफ और नेक ख्वाहिशात के साथ रुख्सत किया। वेस्ट कैनाल कैंपस में गाला नाइट का एहतमाम हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात हल्ला गुल्ला करके खूब लुत्फानंदोज़ हुए। न्यू गार्डन टाउन रिवा के NCBA वेस्ट कैनाल कैंपस में कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से मुनक़िदा गाला नाइट में तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। DJ ने पंजाबी और अंग्रेज़ी गानों से तलबा को महसूस किया। इस मौका पर माइकल जैक्सन के फ़न को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक तालिब इल्म ने ब्रेक डांस करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तलबा का कहना था कि मौसम में तब्दीली आ रही है और ये तफरीह करने के बेहतरीन दिन हैं, ताकि उनकी बेहतर तौर पर ग्रूमिंग हो सके और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँ तो मैनेजमेंट के लिहाज से या और भी एक्टिविटीज़ को मैनेज बेहतर तौर पर कर सकें। डिस्ट्रिक्ट एरोबिक्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम स्कूलों की तालिबात के दरमियान एरोबिक्स मुकाबलों का इनेकाद किया गया। स्कूल्स की तालिबात ने एरोबिक्स का शानदार मुजाहरा करके मुकाबलों को दिलचस्प बना दिया। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फिरोजपुर रोड में होने वाले इन मुकाबलों में बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, गैरिजन स्कूल, साइकास स्कूल, सलामत स्कूल, समनाबाद कॉलेज, क्वीन मैरी कॉलेज, यूनिक अकेडमी, लाकास और सिटी स्कूल की तालिबात ने शानदार मुजाहरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एरोबिक्स एसोसिएशन के सदर दानिश मुबारक, मूसा खान, सुहेल चौधरी, निशा चौधरी और फैशन आइकॉन BG समेत स्कूलों के असातिज़ा ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की